Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss some concept of process to compel appearance of person before the court of law, in which we will specifically discuss section 61 to section 63, which is a part and parcel of first mode of process to compel appearance before the court of law, that is a summons. So in this particular lecture we will discuss what is exactly the form of summons is there, how summons will be served upon the person summoned, and whenever the summons is to be served on such a person who is in any corporate bodies or societies. So under such a circumstances, in what manner such summons will be served, we will discuss in today's lecture. तो आज हम सेक्शन 61 से सेक्शन 63 CrPC का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फॉर्म ऑफ समन्स है, समन्स किस तरीके से सर्विस समन्स की होती है वो डिस्कस करने वाले हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज पे समन्स किस तरीके से सर्व किया जाता है वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेक्शन 61 to 63 of Criminal Procedure Code, that is dealing with topic of summons. So section 61 as the introduction of summons is like that: the person who summoned is legally bound to appear before the court on the given date will disobedience liable to be punished under section 174 of IPC. So whenever the court issue a summons against any accused person, it will be against any accused person or any witness. It will be the duty of that person to remain present on the required date. If the summons is disobeyed by the person summoned, then he may be liable to face a punishment under section 174 of Indian Penal Code 1860. तो अगर समन्स का डिसोबीडियंस होता है या समन्स के रिक्वायर्ड डेट पे अगर वो पर्सन नहीं पहुंचता है जिसके अगेंस्ट में समन्स इशू हुआ है, तो उस पर्सन को पनिशमेंट हो सकती है सेक्शन 174 आईपीसी के हिसाब से। नाउ समन्स इज अ कॉल सर्व अपॉन टू अटेंड द कोर्ट, इट इज एड्रेस्ड टू द पर्सन whose attendance is required. So summons is one type of call to a person whose attendance is required before the court of law. जिस किसी की भी कोर्ट पे प्रेजेंसी जरूरी है उसको भेजा गया एक कॉल समन्स कहलाएगा। Then अब section 61 deals with form of summons. What will be the form of summons? So every summons issued shall be in writing form. So every summons shall be in written form. It cannot be in oral form. तो summons written form में होना जरूरी है, summons oral नहीं हो सकता है। Then it bear the seal of the court. Not only summons shall be in written form, but it shall bear the seal of the court. जो भी कोर्ट समन्स इशू करेगा उस कोर्ट की सील, उस कोर्ट का स्टैंप समन्स पे रहना जरूरी है, तभी वो लीगल समन्स होगा, अदरवाइज नॉट। इट शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट। नॉट ओनली द सील ऑफ द कोर्ट बट इट शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है समन्स, सील होना चाहिए उस कोर्ट की। थर्ड रिक्वायरमेंट है मैजिस्ट्रेट की उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, तब तक वो वैलिड समन्स नहीं कहलाएगा। देन द समन्स शैल बी इन डुप्लीकेट। समन्स शैल बी इन डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कॉपीज में समन्स होना जरूरी है। वन कॉपी शैल बी डिलीवर्ड टू द पर्सन समन्ड एंड ऑन द अनदर कॉपी द रिसीव्ड शैल बी टेकन। उसका रिसीव्ड लिया जाएगा, एक कॉपी डिलीवर की जाएगी जिस पर्सन के अगेंस्ट में समन्स है उसको, और दूसरे पे उसकी डिलीवरी लिया जाएगा। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ समन्स के ये सब रिक्वायरमेंट होना जरूरी है समन्स में। रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है, कोर्ट की सील होना जरूरी है, मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर होना जरूरी है, और द समन्स शैल बी इन डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट कॉपीज में होना जरूरी है। सो सेक्शन 87 empowers a magistrate to issue a warrant even if the case is summons case if he has reason to believe that the summons will be disobeyed. If the magistrate is having reason to believe that the summons will be disobeyed, then instead of issuing a summons, such magistrate can issue a warrant directly.
अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि समन्स इशू करने के बाद समन्स डिसओबे हो सकता है तो सिचुएशन में समन्स इशू किए बिना डायरेक्टली कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। सेक्शन 205, a magistrate issuing the summons may permit the accused to appear by his lawyer if he sees reason to do so। तो सेक्शन 205 में मैजिस्ट्रेट को पावर है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि केस लेस सीरियस है तो वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में समन्स इशू आए उसको ना बुलाते हुए एडवोकेट के थ्रू भी वो प्रेजेंट रह सकता है। दैट इज सेक्शन 61। प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 61 पे पूछा जा सकता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ समन्स। सो समन्स मे बी ओरल, समन्स शैल बी इन ट्रिप्लिकेट, समन्स शैल बी इन डुप्लीकेट, none of the above। So we have already discussed that one of the form of summons is the summons shall be in duplicate। वो रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है, सील होना चाहिए कोर्ट की, रिटर्न फॉर मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर होना चाहिए और समन्स शैल बी इन डुप्लीकेट। तो समन्स डुप्लीकेट में होना चाहिए, ना तो ट्रिप्लीकेट में और ना तो ओरल फॉर्म में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नाउ सेक्शन 62, समन्स हाउ सर्व। समन्स सर्व कैसा होगा? सो summons shall be served by a police officer or by any officer of a court issuing it or other public officer। So summons can be served by a police officer ordinarily। If there is no police officer then it can be served by the officer of a court issuing it or any other public officer। तो पुलिस ऑफिसर भी समन्स को सर्व कर सकता है या तो कोर्ट का कोई इंप्लॉई जैसा कि बेलिफ वगैरह है या और कोई पब्लिक ऑफिसर हो वो समन्स को सर्व कर सकता है। अब समन्स सर्व कैसा करेगा? सो समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन समन्ड। तो प्रैक्टिकेबल अगर है तो समन्स जिस पर्सन के नाम का समन्स है उस पर ही सर्व होना चाहिए। द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन समन्ड। मेरे अगेंस्ट में समन्स है तो मुझे ही सर्विस होना चाहिए समन्स की। देन द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन्स टू बी डिलीवर्ड टू द पर्सन। व्हाइल सर्विंग अ समन्स द ऑफिसर हु इज सर्विंग अ समन्स शैल डिलीवर अ वन कॉपी ऑफ समन्स टू द पर्सन समन्ड। मेरे अगेंस्ट में समन्स है, कोई पुलिस ऑफिसर अगर समन्स लेकर आता है तो वो समन्स की एक कॉपी मुझे डिलीवर करेगा। देन on the beside of the summons, on the back side of the summons, the signature of summoned person shall be obtained। एक कॉपी मुझे दी जाएगी, दूसरी कॉपी के बैक साइड पे मेरी सिग्नेचर ली जाएगी। That will be the witness of service of summons। वो समन्स सर्व हुआ इसका विटनेस रहेगा। Then दोनत राम वर्सेस Carsenal, that is a particular case, it was held summons should not only be shown but a copy of it left exhibited or delivered or tendered to the person summoned। So in this case the court says that the summons should not only be shown but one copy shall be delivered to the person summoned। सिर्फ समन्स बताए कि तुम्हारे अगेंस्ट में समन्स है और तुमको ये डेट में प्रेजेंट रहना, ये सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि एक कॉपी समन्स की उस पर्सन को डिलीवर करना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट में समन्स है। सो इशुएंस ऑफ समन्स बाय पोस्ट टू द अक्यूज्ड इज नॉट परमिसेबल। सो कोर्ट कैन नॉट इशू अ समन्स अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन बाय पोस्ट। तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में बाय पोस्ट समन्स इशू नहीं किया जा सकता। सेक्शन 62 पे क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन जेएमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन है, समन्स ऑफ कोर्ट कैन बी सर्व्ड बाय ओनली अ पुलिस ऑफिसर, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, पब्लिक सर्वेंट, एनी ऑफ देम। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द समन्स, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में देखिए, समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय an officer of the court issuing it or other public officer। so the correct answer is any of them। पुलिस ऑफिसर भी सर्व कर सकता है समन्स, कोर्ट का कोई ऑफिसर भी कर सकता है और कोई पब्लिक सर्वेंट भी कर सकता है। so any of them is a correct answer। now section 63, service of summons on corporate bodies। so if the person summoned is in active service of corporate bodies or society, suppose if the court wants to issue a summons against such a person who is working in any corporate bodies or society। समन्स अगर कोर्ट ऐसे पर्सन को इशू करना चाहता है जो किसी कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटी में काम कर रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा?
summons may be sent to secretary, local manager or other principal officer of the corporation or society. Instead of sending and issuing and summons to the person summoned directly, the summons may be sent to secretary, लोकल मैनेजर और अदर पब्लिक ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन और सोसाइटी। तो कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्टली उस पर्सन को समन्स ना भेजते हुए समन्स किसको भेजेगा, वो जो कॉरपोरेट बॉडीज और सोसाइटी का लोकल मैनेजर है या उसका सेक्रेटरी है या उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसको समन्स भेजा जाएगा। और उसको भेजने के बाद डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन्स शैल बी टेंडर टू पर्सन समन्ड। वो ऑफिसर क्या करेगा, एक डुप्लीकेट कॉपी जिस पर्सन के अगेंस्ट में समन्स है उसको देगा और दूसरे कॉपी पर उसकी सिग्नेचर लेगा। एंड ऑब्टेन अ सिग्नेचर ऑफ समन्ड पर्सन ऑन डुप्लीकेट कॉपी, और डुप्लीकेट कॉपी पे उसकी सिग्नेचर ली जाएगी। सर्विंग ऑफिसर शैल सबमिट द सेम विथ हिज रिपोर्ट टू द कोर्ट। जो सर्व कर रहा है, सर्विंग ऑफिसर जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल वो लोकल मैनेजर रहो, तो वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि हाँ मैंने पर्सनली इस पर्सन को समन सर्व किया और ये जो सिग्नेचर है उसी पर्सन की है, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। एंड दैट रिपोर्ट विल बी सेंट टू द कोर्ट, वो रिपोर्ट कोर्ट को सेंट की जाएगी। सो सेक्शन 63 डील्स विद सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज। ऐसा पर्सन जो कॉर्पोरेट बॉडी और सोसाइटी में अगर काम कर रहा है, उसको अगर समन्स इशू करना है तो उस सिचुएशन में वो समन्स इस तरीके से इशू होगा जो अभी हमने डिस्कस किए। अब इस पर पूछा गया क्वेश्चन है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में, प्रायर टू इशुएंस ऑफ समन्स टू अक्यूज्ड, notice is required to be issued to the accused, notice is not required to be issued to the accused, it is discretion of the magistrate whether to issue notice or not, none of the above। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर समन्स इशू करने के पहले प्रायर टू इशुएंस ऑफ समन्स टू अक्यूज्ड ये करना जरूरी है क्या, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ना तो इशू करना जरूरी है, ये कोई बात ही नहीं है, court can directly issue a summons against the person, so none of the above is the correct answer। So this is a particular section 61 to section 63। I hope you understand this topic। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends। Thank you।